یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شبیر الزمان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ پولیس عملہ اور چناؤ مواد پہنچ گیا متعلقہ پولنگ مراکز پر۔ تیسرے مرحلے میں نام واپس لینے کے آخری دن کے بعد وادی کے 16 حلقوں میں 202 امیدوار میدان میں۔ دوسرے مرحلے کی مہم زوروں پر۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید کے سلسلے میں وادی بھر میں روح پرور مجالس کا انعقاد۔ اور ملک میں سوچھ بھارت مشن کے 10 سال مکمل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت کل یوٹی کے 24 اسمبلی حلقوں میں ہونے والی پولنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور چناؤ عملے کے ساتھ ساتھ چناؤ سے جڑے مواد اور مشینری کو متعلقہ پولنگ مراکز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کل کشمیر صوبے کے 16 اور جموں ڈویژن کے 8 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے سے شروع ہوگا اور یہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ دیگر سبھی تیاریوں کے ساتھ ساتھ سلامتی کے انتظامات بھی مکمل کیے گئے ہیں۔ رائے دہندگان کی سہولت کے لیے 3276 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت 23,27,000 ووٹر 219 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ سب سے زیادہ 14 امیدوار پامپور حلقے جبکہ سب سے کم یعنی 3 امیدوار بیج بہاڑا حلقے سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے انتخابات کے تعلق سے پیش ہے ہمارے نمائندے کی یہ خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت ووٹنگ شروع ہونے میں اب 10-12 گھنٹے کا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ چناؤ کے احسن پرامن اور منصفانہ انعقاد کے لیے متعلقہ ضلعوں میں سلامتی سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے لیے کل 3276 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ پولنگ مراکز پر ہر طرح کی بنیادی سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ مشینری اور عملہ پہنچ چکا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ رائے دہندگان کو اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے میں کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس مرحلے کے تحت جنوبی کشمیر کے 4 ضلعوں میں پھیلے 16 اسمبلی حلقے اور جموں صوبے کے 3 ضلعوں کی 8 اسمبلی نشستوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ مجموعی طور پر پامپور، ترال، پلوامہ، راجپورہ، زین پورہ، شوپیاں، دمہال ہانجی پورہ، کلگام، دیوسر، ڈورو، کوکرناگ ایس ٹی، اننت ناگ ویسٹ، اننت ناگ، بیج بہاڑا، اننت ناگ ایسٹ، پہلگام، اندروال، کشتواڑ، پاڈر ناگ سنی، بھدرواہ، ڈوڈا ویسٹ، رامبن اور بانہال حلقوں میں 23,27,000 ووٹر ووٹ دینے کے اہل ہوں گے، جن میں 11,76,441 مرد اور 11,51,042 خواتین ووٹر بھی شامل ہیں۔ اس مرحلے کے تحت پہلی مرتبہ ووٹ کا استعمال کرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 ہے۔ پہلے مرحلے میں 219 امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں، جن میں کئی سابق وزراء، سابق MLA اور دیگر نامور شخصیات بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ یعنی 14 امیدوار پامپور حلقے جبکہ سب سے کم یعنی 3 امیدوار بجبیاڑا حلقے سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حلقوں میں لوگ بڑھ چڑھ کر ووٹنگ عمل میں شرکت کر کے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں تاکہ یوٹی میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ پرامن، ترقی یافتہ اور خوشحال جموں کشمیر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کے لیے میں سہیل بٹ۔ اسی دوران تیسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے نام واپس لینے کی آج آخری تاریخ تھی۔ اس مرحلے کے تحت یوٹی کے 40 اسمبلی حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وادی کے 3 اضلاع میں پھیلے 16 حلقوں میں تیسرے مرحلے کے لیے مجموعی طور پر 202 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق بارہمولہ ضلع کے 7 اسمبلی حلقوں میں 6 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اب وہاں 101 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ کپواڑہ ضلع کے 6 اسمبلی حلقوں میں 16 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اب ان حلقوں کے لیے کل 59 امیدوار چناؤ میدان میں رہ گئے ہیں۔ بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ضلع کے 3 اسمبلی حلقوں میں 4 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے ہیں اور اب وہاں کل 42 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ ادھر پہلے مرحلے کی چناؤ مہم ختم ہونے کے بعد اب سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کی توجہ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل، بڈگام، سری نگر اور شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ کی طرف مرکوز ہو گئی ہے۔ ان سبھی ضلعوں کے اسمبلی حلقوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ چناؤ مہم اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور ان کے امیدواروں سمیت آزاد امیدوار جگہ جگہ پر چناؤ جلسوں، ریلیوں اور روڈ شوز کا انعقاد کر کے رائے دہندگان کو اپنی جانب
जानिब रागिब करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कई उम्मीदवार घर घर जाकर अपने मंशूर से वोटरों को आगाह करके उनसे वोट तलब करते हैं। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को 26 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत 239 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत मुतअद्दिद हलकों में होम वोटिंग का अमल भी शुरू किया जा चुका है। इस सहूलत के जरिए से जिस्मानी तौर खास अफराद और 85 बरस से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी घर बैठे ही अपना वोट दे सकते हैं। इस सिलसिले में काफ़ी तादाद में टीमें तश्कील दी गई हैं और उन्हें अपने अपने हलकों की तरफ रवाना किया गया है। रियासी ज़िले में इस तरह की 74 टीमें तश्कील दी गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा लोगों के हुकूक की पासदारी की है। वो आज गांदरबल असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव जलसों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मनफी सियासत करने वाली पार्टियों से खबरदार रहें। दरी असना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव मुहिम चलाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नुक्तचीनी करते हुए कहा कि ये पार्टी तरक्की के बुलंद बांग दावे तो करती है मगर ज़मीनी सतह इसके बरअक्स है। उन्हें राय दहिंदगान से अपील की कि वो इंतखाबात के दौरान ईमानदार और मेहनत कश उम्मीदवारों के हक में अपना वोट दें। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। वादी भर में आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद पूरे मजहबी जोशो खरोश और तुज़्को एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में आज दिन भर दरगाहों, खानकाहों, मसाजिद और बुकजात में दीनी मजालिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान उलमाए किराम ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को तफसील से उजागर किया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये तफसीली रिपोर्ट। इंसानियत जहालत के अंधेरे में गर्क थी। लोग हक तलफी, झूठ, फरेब, खुदगर्जी, खुदनुमाई और दुख्तरकुशी जैसे जराइम को मामूल समझते थे। चहारसू जुल्म जबर का माहौल था। रहमत खुदाबंदी बरजोश आई और अरब के रेगिजारों में एक ऐसा नूर चमका जिसने जुल्मात के पर्दों को पाश पाश कर दिया। आज से तकरीबन 1460 साल कबल माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सरजमीन अरब के शहरी मक्का में पैगम्बर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इसी मुनासिबत से आज दुनिया के बेशतर ममालिक में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में जगह जगह सीरत और मीराद मजालिस का एहतमाम हुआ। वादी भर में भी आज ईद मिलाद की मुनासिबत से सीरत मजालिस मुनक्कद हुई। ईद मिलाद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में हुआ, जहाँ आज दिन भर वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंद हाजिरी देते रहे। फजा में दुरूद अज़कार और नातो मुनाजात की सदाएं गूंजती रहीं। आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल और दीगर कई बुक़जात में आज हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की ज़ियारत कराई जा रही है। इससे कबल आसारी शरीफ हजरत बल और वादी की बेशतर मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में ईद मिलाद की मुनासबत से शब बेदारी की मजालिस का एहतमाम हुआ, जिनमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया और रब्बे कायनात के हुजूर सरबसजूद होकर इस नेमत उज़्मा के लिए सजदे शुक्र बजा लाया। खालिक कायनात ने फख्र मौजूदात खत्मुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और बेइज्जत को बनी नवा इंसान के लिए एहसान इलाही और नेमत उज़्मा करार दिया है और खुदावंद तआला ने इब्न आदम के लिए हिदायतनामा भी इसी ज़ात अक़दस पर नाजिल फरमाया। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत के असूलों पर मबनी दीन इस्लाम की तालीमात के जरिए इंसानियत को जाविदां किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हज्जतुल विदा को आलमी इंसानियत के लिए कीमियाए सादत माना जाता है और ये तालीमात हर दौर के इंसान के लिए मशाल राह बनी रहेंगी। आकाशवाणी शोबे खबर के लिए श्रीनगर से मैं सैयद मुबशिर रुफाई। वादी के दीगर मकामात की तरह ही पितीपुरा पुलवामा में भी मीलाद की एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। स्वच्छ भारत मिशन ने मुल्क में 10 साल मुकम्मल किए हैं। 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसके ज़मीनी सतह पर सूदमंद नताइज बरामद हुए हैं। मुल्क में मिशन के 10 बरस मुकम्मल होने के बाद अब इस साल स्वच्छता ही सेवा मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम हाल ही में झुंझुनू राजस्थान में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और कई दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में शुरू की गई। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में 11 लाख बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं।
वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी मरतबा की हुकूमत में पहले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए लागत के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी मंजरनामे को दवाम बख्शने, आला मयार का बुनियादी ढांचा कायम करने, सिक्योरिटी निज़ाम को मुस्तहकम करने और गरीबों व मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ज़राए अबलाग को जानकारी देते हुए अमित शाह ने पिछले 10 बरस के दौरान मुख्तलिफ सेक्टरों में हुकूमत के इकदामात को उजागर किया। इस मौके पर अमित शाह और इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर एक किताबचा भी जारी किया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि तमाम ज़बानों को वक़ार बख्शते हुए हिंदी को फ़रोग दिया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में प्रसार भारती सेक्रेटरीट में हिंदी दिवस के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी ज़ुबान बोलना और समझना आसान है। उन्होंने कहा कि हर एक शख्स को फ़ख्र के साथ हिंदी बोलना चाहिए। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज के दौरान सरकारी ज़बान हिंदी को मुकम्मल तौर से बरोए कार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी ज़बान को मुल्क की तमाम ज़बानों में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 74 बरस के हो गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने वज़ीर आज़म को उनके 74वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद देते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का दूसरा शुमारा आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस आला सतही कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवल कमांडर मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करते हैं। अब मौसम से मुतल्लिक़ इत्तला। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.6, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग अमला और चुनाव मवाद पहुंच गया मुतल्लिका पोलिंग मराकिज पर। तीसरे मरहले में नाम वापस लेने के आखिरी दिन के बाद वादी के 16 हलकों में 202 उम्मीदवार मैदान में। दूसरे मरहले की मुहिम जोरों पर। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में वादी भर में रूह परवर मजालिस का इनेकाद। और मुल्क में स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। जरा देर बाद समाप्त करें आप तबसरा।